So here we are back on our channel. So in today's session we are going to discuss about part 2 of the Indian Constitution. Sometimes I wonder, I hope you are also wondering about ki, am I the citizen of India? How I get my citizenship? What makes me a citizen of India? Is it where I born, that's why I become a citizen? Or where I live, reside, domicile, or where my parents born? That's all questions wonder you sometimes, may or may not be. So let's have discuss on all these questions by discussing about the part 2 of Indian Constitution, which consists of article number 5 to 11. So here we are. Have you ever seen the preamble? The preamble on which is written, "We the people of India." We the people. Who constitute the we the people of India? What does that people word comprises of? उसमें कौन कौन लोग आते हैं? People जो word है उसमें इंडिया के लोग भी आते हैं, outside इंडिया भी आते हैं, whether it includes both of them or not. So let's discuss with this. I hope my screen is visible to you all, guys. Okay. Let's discuss. First, we need to understand the concept of the state. State comprises of 4 components. As you can see in the screen, the people, government, territory, and sovereignty. Sovereignty we have discussed in the word. Sovereignty we have discussed while we are discussing the preamble. If you understand that word meaning, then write your answer in the comment section regarding that word. So I will explain it again. Sovereignty. Sovereignty means that any of the territory which is comprises or controlled by certain people or government, they have their own rights to enter into a contract. They have their own resources, how to manage them. They have a full control over their territory, whether it is about to be make rules and regulation for the internal purpose or the external purpose. Like India has its own stand, whether to be a part of the international forums or not. It has India's own stand, and even no other country is required to interfere our internal affairs as well. How we are managing our government, how we are managing our people, how we are growing, these kind of functions not to be interfered. That is sovereignty is that. It is just like understand that being as an individual, you have your sovereignty, but like your parents have higher sovereignty than you guys. Okay. So the part 2 of Indian Constitution Indian Constitution comprises of article 5 to 11, in which articles have been, you can classify in them. Yeah, I have picked this from your study mat only. Article number 5 to 8, citizenship by domicile, and article 9 to 11 based on the basis of acquired citizenship. So let's understand this. I will give you a brief about it. Okay, I need to find out a clear page. Okay. Okay, here we are. The Constitution of India does not tell us about the citizenship. Constitution of India tell us about the citizenship of all those, or to the people who are to be considered the citizen of India, who are considered to be the part of the India only at the time of the Constitution, framing of the Constitution, which is 26th of November 1950. जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना था उस वक्त इंडिया के कौन लोग होंगे उसके बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. कॉन्स्टिट्यूशन हमें उसके आगे के टाइम पीरियड के बारे में नहीं बताता है कि हु आर कंसिडर्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. दैट हु आर कंसिडर्ड टू बी आफ्टर दिस डेट, it has been told by the Citizenship Act
1955. It is stated in this act. ये इस एक्ट में बताया जाता है कि 26 नवंबर 1950 के बाद जो भी सिटीजनशिप होगी वो किन लोगों को कंसीडर किया जाएगा, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट के अंदर है. ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कि द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें 26 नवंबर 1950 के बारे में बताता है उस दिन कौन कंसीडर किए जाएंगे सिटीजन, उसके बाद के जो हैं उन सबको कंसीडर करने के लिए हमने पार्लियामेंट के थ्रू एक एक्ट बनाया गया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955. वो हमें दैट विल टेल अस की who are considered to be the citizen of India. So now let's start with. First you need to understand who are the citizen and who are the aliens. Citizen and the word alien. Let's consider first, let's understand the word alien. Alien word हमने टू टाइप्स के एलियन होते हैं आपके. एनिमी एलियन, एलियन नहीं है जो बाहर आउटर स्पेस में, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम डिस्कसिंग अबाउट द पीपल हु आर लिविंग इन आवर कंट्री, दैट इज एलियन. दे आर ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एलियन. दे आर फ्रेंडली एलियन एंड एनिमी एलियन. फ्रेंडली एलियन आर दोज एलियंस आर दोज फ्रॉम विच आर कंट्री हैज़ अ कॉर्डिनल और फ्रेंडली रिलेशंस. जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ है, इंडिया चाइना के साथ है. अनलेस एंड अनटिल इफ इंडिया इज एट वॉर विद पाकिस्तान, देन दीज पीपल आर कंसिडर्ड, ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड एज एनिमी एलियन. I hope you get my point. Alien, here we are describing the word alien to differentiate between the citizens and to the people who are born in India, brought up in India, उनके पेरेंट्स आर बॉर्न इन इंडिया. जो इंडिया के लोग हैं उनसे दूसरे लोगों को इस तरीके से अलग किया जाए, इसके लिए हम एलियन वर्ड यूज़ कर रहे हैं. अब इसमें भी टू टाइप्स के एलियन है, फ्रेंडली एलियन, एनिमी एलियन. फ्रेंडली एलियन आर दोज एलियंस विच द पीपल द कंट्री इज नॉट एट वॉर पे नहीं है, तो सारे जितने भी इंडिया के बाहर आउट से जितनी भी कंट्रीज है वो सारे हमारे फ्रेंडली एलियंस है. बट वंस द वॉर हैज बिगिन बिटवीन द इंडिया एंड द अदर कंट्री, देन ऑल द पार्टीज और ऑल द पर्सन्स ऑफ दैट territory or the other country is considered to be the enemy alien. Who are citizens? Citizens are those persons who get the special rights. Only these are the special rights which is given to the citizen. Article number 15, Article number 16, Article number 19, 29 and 30. Article 15 आपको कहता है right, there is no डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा आपके पब्लिक प्लेसेस वगैरह पे. 16 आपको कहता है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस इन पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई करने में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस, एंड देयर टू मोर इन दिस, रेजिडेंसी एंड डिसेंसी. डेसेंसी के बेसिस पे भी नहीं किया जाएगा एंड उसके बेसिस पे. तो वी आर गोइंग टू बी डिस्कस इन द फंडामेंटल राइट्स चैप्टर, बट आई एम गिविंग यू द ब्रीफ द व्हाट आर द बेनिफिट्स कैन बी हार्बर बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. आर्टिकल नंबर 19 दैट यू कैन freedom of speech, you have a freedom of associations, you can move freely into the entire territory of India, you can do any kind of business or profession. Article number 29 and 30, they are the protecting the rights of the minority rights which are only be applicable and provided only to the citizens of the territory. और here we are considering that the territory is include the territory of India. लोगों के इंडियन भारतीयों को ही ये अप्लाई है, एप्लीकेबल है. Before starting the articles, I need to make you to understand the difference between the two concepts as well, domicile and resident. Domicile is for the legal concept purpose, like your for income tax purpose, your marriage purpose and various other legal purposes. It is a permanent home, जहाँ आपका permanent निवासी हो, आप जहाँ के आप परमानेंट रहते हो वहीं पर हो, योर डोमिसाइल, योर ब्रॉन एंड बॉटम बीवर. रेजिडेंट्स आर द टेम्परेरी पर्पज दैट यू हैव माइग्रेटेड टू अब्रॉड फॉर स्टडिंग, यू हैव माइग्रेटेड अब्रॉड फॉर डूइंग business or any other purposes. That is the concept between resident. I hope you get to understand between these concepts, citizen and alien, domicile and resident. Okay, now let's start with our main discussion, articles. So here I am showing you all the articles which are directly extracted from the Constitution of India. I hope my screen is clearly visible to you all, you guys.
Okay, now let's start with it. Article number 5, citizenship at the commencement of the constitution. What is written? Commencement, यानी starting, जब on the date when the Constitution of India had commenced or enforced, that is 26th of January 1950. Oh, I'm sorry, I just missed it one date. Let me correct it here. Sorry, that is it's 26 January. Oh. So here we are going with it. Just give me a 1 second. Okay. The commencement of the enforcement of the constitution has been taken place. The constitution has been enforced on 26th November 1949. But the constitution has been commenced and work had been started on 26th of January 1950. Okay, that is the Republic Day of our country as well. Okay, now let's start the discussion. The citizenship at the commencement of the constitution, यानी constitution के commencement में, at the commencement of this constitution, every person who has his domicile in the territory of India and जिसका domicile है यानी permanent resident था, because at the time of the partition of India, the India has been parted into two dominions, the dominion of India and the dominion of Pakistan. So at that time partition on Pakistan got the independence on 14th August 1947 and we got the independence on 15th August 1947. At that time there is a difference. So we need to be considered who are to be the part of the who are the to be the citizens of India. तो इस सब सिनेरियो के बेसिस में जो हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था और जो सिटीजनशिप जिन्हें देनी थी उन सब के प्रोविजंस उसके बारे में डिस्कस हम यहाँ कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके मेंशन है. तो एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन जिसका डोमिसाइल है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में एंड हु वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. I hope you get it. Territory of India has been stated in Article 1 of the Indian Constitution में आपको डिफाइन किया गया टेरिटरी का मतलब क्या होता है, जितने भी स्टेट्स हैं आपके, जितने भी यूटीज हैं, एनी कोई एक्वायर्ड टेरिटरी भी है वो सब टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं. ओके, तो हु इज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ईदर ऑफ हुज पेरेंट आर बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो उसके वो खुद बोर्न हुआ या उसके पेरेंट्स बोर्न हुए, या ही हैज़ बीन द ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना मिनिमम 5 years तो उसको होना ही चाहिए, तब इन सब के पास क्या है, दे आर कॉल्ड टू बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहे जाएंगे वो. सॉरी. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इसके आर्टिकल नंबर 5 में. देखिए कमिटमेंट के बारे में बता रहा है एंड यू शुड बी अ डोमिसाइल, तो मैंडेटरी. फिर कोई भी एक कंडीशन, या तो आप खुद बॉर्न हो या आपके पेरेंट्स बॉर्न हो या आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो पिछले 5 सालों की कंडीशंस के अंदर में. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल नंबर 6. आर्टिकल 6, द राइट्स ऑफ अ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. यानी जब पार्टीशन हुआ, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुआ था, एंड 15 अगस्त ऑन द वेरी सेम डे एट 12 ऑन द नेक्स्ट डे एट 12 AM इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट. तो जो लोग वहाँ पाकिस्तान की टेरिटरी से इंडिया में माइग्रेट हुए उनके बारे में बताया गया कि उन्हें सिटीजनशिप किस तरीके से मिलेगी. बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, दे आर बट बिलोंग टू पाकिस्तान, दे हैव टू बी गो देयर एंड सिमिलरली वाइस वर्सा. Notwithstanding anything in Article
5 कुछ भी क्यों ना लिखो आर्टिकल 5 के अंदर, अ पर्सन हु इज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान, ऐसी टेरिटरी से आया जो कि अब पाकिस्तान का पार्ट बन चुके, शेल बी डीम टू बी ए सिटीजन माना जाएगा एट द कमिटमेंट पर, कब, इफ ही, या तो वो खुद या उसके ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ये वर्ड ध्यान रखिएगा क्योंकि बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट में ज़्यादातर हम पेरेंट्स का ही कंसेप्ट पढ़ते हैं वहाँ पर, तो यू विल बी मिस इट आउट, तो यू शुड बी टेकन इन टू नोट ऑफ दैट कि हाँ ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, वो भारत, ऐसा भारत जो डिस्क्राइब किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर में, उस भारत में या तो वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इट इज द एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर इंडिया, उस समय 1935 का गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट आया था, तो बट इट इज़ नॉट एक्चुअली एप्लीकेबल, बट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंटायरली बेस्ड अपॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उसके अंदर जितना भी तो पाकिस्तान इंडिया पूरा एक पार्ट था, फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान टू ईस्ट पाकिस्तान, इट इज़ ऑल ओवर इंक्लूडेड इन इंडिया, तो दैट इज़, तो उसके तहत उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो इंडिया डिफाइंड है, इट इज़ इंडिया वॉज अ ह्यूज टेरिटरी एट दैट टाइम, तो उसमें अगर आप या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए एंड ईदर ऑफ द कंडीशन, बी क्लॉज में से कोई भी आप एक कंडीशन फुलफिल करने, इन दिस केस वे सच पर्सन सो माइग्रेटेड बिफोर, एक कट ऑफ डेट यहाँ मेंशन है 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया एंड हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उस दिन से, तो ही विल गेट द सिटीजनशिप इन केस वेयर द सच पर्सन, अगर इस दिन के बाद आया है, इस दिन के बाद आया है 1907 और 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, हैज़ बीन रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, तभी माना जाएगा अगर वो अपॉइंटेड इन दैन बिहाफ, कोई गवर्नमेंट ऑफिस, जो ऑफिस था गवर्नमेंट का जो ऑफिस था वहाँ पे उसने जाकर के रजिस्ट्रेशन करा दिया और एप्लीकेशन उसने मेड इन दिस बिहाफ कर दी गई है उसके द्वारा। देयरफॉर सच ऑफिस बिफोर द कमिटमेंट, जो कमिटमेंट से पहले जो भी ऑफिस था उस काउंसिलर के पास जाकर उसने स्पेसिफाई कर दिया दैट आई एम सो एंड सो पर्सन रिगार्डिंग दैट मैंने, और जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म्स एंड स्पेसिफिकेशंस दिए गए थे उसके रेस्पेक्ट में, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शेल बी रजिस्टर्ड, नहीं किया जाएगा इस कंडीशन के अंदर में अनलेस ही इज अ रेजिडेंट, यहाँ पर 6 महीने तक रुका रहा हो, मतलब ही हैज़ टू बी फुलफिल द पीरियड ऑफ 6 मंथ, जब एप्लीकेशन दी उससे पिछले 6 महीने तक यहाँ पे रहा हो, अनलेस ही रेजिडेंट द टेरिटरी फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। तो ये जो प्रोवाइजो है वो बी क्लॉज के लिए है आपका की, तो लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ ब्रीफ मैनर। दैट इज आर्टिकल 6 आपको बताता है कि सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन की जो कि इंडिया आए हैं पाकिस्तान से, उनके बारे में फर्स्ट क्लॉज आपसे कह रहा है कि या तो आप खुद या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए एंड कोई भी कंडीशन, एक कट ऑफ डेट है, अगर उससे पहले आ गए तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी डायरेक्टली। इफ आप उस कट ऑफ डेट के बाद आए हुए उस दिन आए हो तो इन दैट केस यू हैव टू बी रजिस्टर्ड एट अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस इन एट दैट टाइम एंड before making an application you have to be fulfill at least 6 months period of being considered as an ordinary resident, आप वहाँ रहे हो। Okay, I hope it is clear to all. Okay, now focus on this Article 7. It is a quite bit, I'm not saying it is difficult, but it's quite tricky one to understand. The rights of citizenship of certain migrants to Pakistan. Let me tell you one thing before this. Hoping कि यहाँ when the partition has been done, few of the people have been moved forward from India to Pakistan. But after residing over there, they feel that we are not feeling good over there. So they moved back from Pakistan to India. तो उस केसेस में सिटीजनशिप के क्या रूल्स है, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल नंबर 7. I hope you will get after this the better understanding of Article 7. Citizenship, right of citizenship of certain migrants to Pakistan. वाइस वर्सा भी कंडीशन हो सकते हैं. ओके, नॉट विथ स्टैंडिंग इन आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 अ पर्सन हु इज आफ्टर 1st day of March, there is also a cut off date for this purpose, 1st March 1947 migrated from the territory of India to the territory now including Pakistan, जो इंडिया की टेरिटरी से पाकिस्तान की टेरिटरी में चला गया है 1947 को ही, उस दिन चला गया. पार्टीशन हुआ था 1947, जब पार्टीशन के लिए रेड क्लिफ लाइन का फॉर्मेशन हो रहा था तब उस वक्त पार्टीशन कर लिया गया था, तो वहाँ पे माइग्रेशन स्टार्ट हो गया था. इन दैट केस अगर आप 1 मार्च 1947 से पहले चले गए हैं पाकिस्तान में तो उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी. ओके, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया. Those who have migrated from territory of India to the Pakistan territory now included in Pakistan shall not deemed to be a citizen. Here, okay. Provided that nothing in this article shall apply to a person who after have been so migrated to the territory now including Pakistan has returned to India. वापस आ गया इंडिया. अब वो
अंडर अ परमिट ऑफ रीसेटलमेंट एंड और परमानेंट रिटर्न। किस चीज़ से? तो परमिट ऑफ रीसेटलमेंट का एक वो चला, एक गवर्नमेंट का स्किप था उसके अंदर में, है ना, स्कीम था परमानेंट रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न के बेसिस पे इशूड और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ एंड उस किसी भी अथॉरिटी के जो भी जो उस समय के लॉज एप्लीकेबल थे उसके अकॉर्डिंग जो इशू किया था। एंड एवरी सच पर्सन शेल बी फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी। तो जो भी प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा वो कौन सा किया जाएगा? आर्टिकल 6 के क्लॉज बी का। आर्टिकल 6 में क्लॉज बी में क्या था कि आप 19 जुलाई 1948 के ऑन और आफ्टर अगर आप आते हैं तो आपको एप्लीकेशन रजिस्टर करानी पड़ेगी एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर के। प्रॉपर स्पेसिफिकेशन फॉर्म्स आपको फिल करने पड़ेंगे। बिफोर दैट एप्लीकेशन यू शुड बी एटलीस्ट बी हैव टू बी रिसाइड इन इंडिया फॉर 6 months to be considered an ordinary resident. So that is, so I will read it for you. Every such person shall be for the purpose of clause B, article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after 19th day of July 1948. Okay, I hope you all get clarity about all three articles: article number 5, article number 6 and article number 7. Let me give a brief of over it. Okay. सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 डिस आपको बताता है कि कमेंसमेंट पे क्या थी। आर्टिकल 6 आपको बताता है, 6 आपको बताता है माइग्रेटेड अगर आप टू इंडिया हो गए हो फ्रॉम पाकिस्तान से, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया वापस आए हो आप, ओके, हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। एंड द थर्ड वन, टू सर्टेन माइग्रेटेंट्स टू पाकिस्तान, स्पेसिफिकली इट इज टेल अस अबाउट जो चले गए थे वापस आए हैं पाकिस्तान से, इंडिया से पाकिस्तान चले गए फिर पाकिस्तान से वापस आए हैं, या यू कैन से दैट रीमिग्रेटेंट कर सकते हो आप इन्हें कि वापस आ गए अपने घर का बोलो शाम को घर वापस आए। इट्स जस्ट लाइक दैट। ओके, सो नाउ डिस्कस विद आर्टिकल नंबर 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब कुछ ऐसे भी थे जो एट द टाइम ऑफ इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, एट दैट टाइम कुछ ऐसे भी लोग होंगे, दे आर द फ्यू पीपल हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एज वेल, आउटसाइड इंडिया एज वेल। तो हाउ दे गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? तो इन दैट केस द आर्टिकल 8 टेल अस अबाउट कि हाउ दीज पीपल गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 में कुछ भी क्यों ना लिखा हो वहाँ पर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट व्हाट हैज बीन रिटन और मेंशन इन आर्टिकल नंबर 5, क्या लिखा है वहाँ पर कि कमिटमेंट के बारे में बताया गया कि कमिटमेंट के टाइम पे आपको सिटीजनशिप कैसे दी कि आप डोमिसाइल होने चाहिए, या यू वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो आपके पेरेंट्स बॉर्न हुए, या आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल कर देंगे दैन यू विल बी गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एट द कमिटमेंट। तो इन दैट केस में एनी पर्सन हु ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, कोई भी उसके ईदर, कोई भी एक पेरेंट ईदर है यहाँ पे ध्यान रखना, ओके, यू नीड टू बी फोकस ऑन सर्टेन वर्ड्स, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स, कोई भी एक पेरेंट्स, एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स, या जिसके ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन, जो कि वो वाला भारत, भारत कौन सा? वो भारत जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन है एक्ट के अंदर में, एंड हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी अदर कंट्री आउटसाइड इंडिया, और इंडिया के बाहर किसी में भी वो क्या है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वहाँ पर। सो डिफाइंड शेल टू बी डीम टू बी सिटीजन मान लिए जाएंगे, वो डीम टू बी ए सिटीजन मान लिए जाएंगे इफ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे अगर रजिस्टर कर ले बाय द डिप्लोमेट या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया का वहाँ पर इन दैट कंट्री वेयर ही इज फ्रॉम द टाइम बिंग रिसाइडिंग एंड मेड एन एप्लीकेशन इन दैट बिहाफ फॉर दैट पर्पस के इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म एंड मैनर के अंदर में अगर आपने एप्लीकेशन में दे दी है काउंसलर को डिप्लोमेट को, इन दैट केस में यू विल बी डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया मान लिए जाओगे। ओके, just read the line on the screens whether before of the commencement of the consent the form and manner is prescribed in the government. Okay, now these are the acquired citizenship. Okay, this is these are the domicile. On the domicile basis you get article 5 में on the commencement, article 6 में आपको 6 and 7 are regarding to the migrants and 8 on the basis of कि बाहर आप इंडिया के बाहर you are residing outside India at the time of that कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के आप बाहर थे तो हाउ यू गेट द सिटीजन। नाउ द सिटीजनशिप आर्टिकल 9, 10 and 11 दे आर द मोस्ट क्रूशियल आर्टिकल्स दैट इज एक्वायर्ड सिटीजनशिप। ओके, first you need to understand for this purpose that is India is not providing you dual citizenship. What is dual citizenship? For example, let's understand the case of USA. In USA is the United States of America. We have discussed in Article 1 at a time about this as well.
US is a true federation because all of the states which are there are total 50 states over there. तो जितने भी states they have come to the conclusion or to the they have come to the consensus about that we will make a United States of America. So they have made a contract for that purpose. But India is not a part of that. India is not a true federation because all the states are do not come on a consensus to make a India. Because India already exist करता था as a body or a holding unit or central unit. फिर हमने उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए वी हैव कार्व्ड आउट द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर द पर्पस ऑफ easy and efficient and effective management or the administration purpose. But United States of America वहाँ पहले से स्टेट से दे हैव कम टू फॉर्म एज अ सेंट्रल यूनिट. तो देयर बाय वहाँ क्या है स्टेट की सिटीजनशिप भी आपके पास में दैट यू आर लिविंग इन अ टेक्सास यू हैव द टेक्सास सिटीजनशिप एज वेल अलॉन्ग विद दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट यू हैव ऑल्सो द सिटीजनशिप ऑफ द सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो दैट इज द पार्ट दे हैव द ड्यूअल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट. बट इन इंडिया देर इज नो ड्यूअल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट. वी हैव ओनली वन सिटीजनशिप दैट इज व्हेट वी गेट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. देर इज नो स्टेट सिटीजनशिप. ओके, I hope you get this point. Now, let's read Article 9, 10 and 11, very easy articles. Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be sent. If any of the person he has acquired the citizenship of any of the foreign country, then his citizenship has been he was deprived from the citizenship of India automatically. No person shall be a citizen of India by virtue of Article 5 or deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 and Article 8 if he has voluntarily acquired कर लिया citizenship किसी भी foreign state का. Continuation of the rights of the citizen. Every person who is or deemed to be a citizen of India under any foregoing provision. Okay, I will explain it. The continuation of the rights of the citizen in this unless and until Parliament do not make any laws in this respect, your citizenship is going to be continued with that respect. That you are to be considered to be a citizen of India. If there is any changes or amendment has been making in the citizenship of India, then you have to be follow that respective procedure and the specific laws regarding that. It is just like that. It is stating that every person who is or deemed to be citizen of India under any of the foregoing provision, पहले के किसी भी provision जैसे deemed कर लिया गया था या होता या जो भी पर्सन था सिटीजन ऑफ दिस पार्ट का शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ के ध्यान में रखते हुए जो भी पार्लियामेंट ने जो कानून में बनाया वो कंटिन्यू टू बी सच सिटीजनशिप को उसकी कंटिन्यू रहेगी उस रेस्पेक्ट में. जो भी लॉज में अगर चेंज हो उस रेस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए आप सिटीजन कंसीडर कर जाओगे. नेक्स्ट, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिटीजन द राइट ऑफ द सिटीजन. पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू रेगुलेट और द सिटीजनशिप. पार्लियामेंट के पास पावर है कि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जस्ट गिव मी अ सेकेंड. नथिंग इन दिस फॉर्म. पार्लियामेंट के पावर है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज हैं स्टैट्यूट्स हैं इज द पावर हैज़ बीन कन्फर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑल दोज मैटर्स को लेजिस्लेट करने के लिए. Okay, now let's read it. So for this purpose the Citizenship Act 1955 has been framed. So we are going to discuss this as well because in your study mat it has not been mentioned in the first part. So I will give you a brief understanding over it so you can be easy to understand the current scenarios or contemporary issues over this as well. Nothing in the foregoing provision of this part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition, termination and all other matters related to citizenship. फोरगोइंग प्रोविजन कुछ भी करना होगा डेरोगेट किसी भी तरीके से कम नहीं करता है पावर को पार्लियामेंट के टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू किसके रिगार्डिंग में एक्विजिशन से रिलेटेड कि आप एक्वायर करते हो, टर्मिनेशन से रिलेटेड आपकी और कोई भी मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में. ओके, I hope you all understand all these articles. They are very simple articles. Article 5, Article 6, 7, 8, 9 and 10 and 11. Article 5 to 8 is related to the citizenship by domicile and Article 9 to 11 related to the acquired citizenship. Now we are going to discuss about the Citizenship Act 1955. Okay. Citizenship Act provides the citizenship on the basis of 5 fundamentals. The 5 bases, that is by birth, by registration, by acquisition, by naturalization and by descendant. As you can see on my screen as well. By birth, that is a brand, it is a short form for the purpose to remain, retain it. Okay. By birth, which is also known as just soil. By registration,
बाय एक्विजिशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय डिसेंट, दैट इज जस्ट डिसेंट यानी आपके पेरेंट्स हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट. तो बाय बर्थ देयर आर सर्टेन कंडीशंस ओवर दैट कट ऑफ डेट्स के बेसिस पे, बट फॉर आर पर्पस वी नीड टू बी फोकस ऑन दिस. ओके, द लास्ट वन. सो आई गिव यू एक्सप्लेनेशन ओवर दैट इफ यू आर डेट ऑफ बर्थ, अगर आप यार आपका डेट ऑफ बर्थ या दैट यू हैव बॉर्न आफ्टर 26 ऑफ जनवरी 1950 यानी कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बॉर्न हुए हैं. ओके, गेट माई पॉइंट दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द जो सिटीजनशिप से रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं आपके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड which is at the time of the commencement of the constitution has been dealt by the constitution के द्वारा डेल्ट किए गए, and after that has been dealt by the particular act which is made by the parliament के द्वारा as per the article 11 के पावर्स को यूज करते हुए. ओके, आफ्टर दिस डेट बट बिफोर द डेट ऑफ 1st जुलाई 1987 से पहले, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी पेरेंट्स की क्या सिटीजनशिप है, इफ़ यू आर बॉर्न इन इंडिया देन यू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, बट यू शुड बी बॉर्न एट अ टाइम ऑफ इंडिया. यानी आपके व्हेन यू आर बॉर्न बिटवीन दीज डेट्स या आपका डेट ऑफ बर्थ इन दिस में आपके पेरेंट्स की सिटीजनशिप क्या है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. बट इन दिस केस में दो एक्सेप्शन, दैट इज फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एनिमी एलियंस. फॉरेन डिप्लोमेट्स, जो भी डिप्लोमेट्स फॉरेन कंट्री के हैं जो इंडिया में आए हैं या रिसाइड कर रहे हैं फॉर द सम ऑफ देयर पर्पसेस, दैट इंडियन पीपल आर ऑल्सो बीन सेंट आउटसाइड इंडिया इन बाहर की कंट्रीज में. इंडियन एम्बेसी है यहाँ पे, फॉरेन एम्बेसीज में हैं, तो देयर डिप्लोमेट्स दे आर नॉट टू बी कंसिडर बिकॉज उनका काम ही यही होता है दैट दे हैव टू बी गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. दैट्स वाई देयर किड्स आर नॉट टू बी देयर kids are not to be considered to be the Indian citizen, नहीं मान ली. Again, enemy aliens are also because our country is at war with the other country. That's why they are citizens. They are not to be considered citizen of India, even if the kids have been born in these date. Okay. Now after this date, but before this date, 3rd of December 2004, या तो ईदर ऑफ द पेरेंट्स, इन दैट केस इधर कोई भी आपका एक पेरेंट जो है सिटीजन होना चाहिए इंडिया का एट द टाइम आपके बर्थ के टाइम पे, देन यू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर दैट वी नीड टू बी फोकस ऑन दिस डेट बिकॉज वी आर गोइंग टू बी फॉरवर्ड ऑन एंड आफ्टर ऑन 3rd December 2024 के बाद हुए या तो आपके दोनों पेरेंट्स या कोई भी एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड दूसरा पेरेंट जो भी है आपका वो इलीगल इमिग्रेटेंट नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ योर बर्थ. ओके, आपके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन होने चाहिए या फिर आप क्या करो कोई भी एक पेरेंट आपका सिटीजन हो लेकिन दूसरा पेरेंट आपका इलीगल मिग्रेटेंट नहीं होना चाहिए. दैट देन इफ द किड हैव बीन बोर्न टू देम देन इन दैट केस द सिटीजनशिप हैज बीन ग्रांटेड टू इट. ओके, नाउ अगेन वी आर बाय डिसेंडेंट यानी बाय ब्लड, जस्ट सैंग्विन यानी आपके मम्मी पापा के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप है. द पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ है तो आई एम ऑल्सो टेलिंग अगर आप वही सेम डेट से, यहाँ पर ये वाली डेट जो है वो चेंज है. बिफोर 10th of December 1992 तो फादर शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ योर बर्थ. आप इंडिया के बाहर अगर बॉर्न हुए हो तो इन दैट केस में योर फादर शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. इन दैट केस ओनली यू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. एंड आफ्टर दैट इफ यू आर बॉर्न ऑन और आफ्टर बट बिफोर तो ईदर ऑफ योर पेरेंट्स कैन बी द सिटीजन ऑफ इंडिया at the time of your birth, then you get the citizen. But now all these rules has been changed. Now after 3rd of December 2024 registration is compulsory if you are born outside India. Okay, this is outside. Okay, here registration compulsory within 1 year. यू हैव टू बी द रजिस्टर्ड विद इन 1 year. अगर आप इंडिया के बाहर बॉर्न हुए तो आपको रजिस्ट्रेशन, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको रजिस्टर करा दें इन द पर्टिकुलर काउंसलर और जो डिप्लोमेट है उसके पास जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन. अगर आपने विद इन 1 year रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, द टाइम हैज़ बीन एक्सपायर्ड, देन द सर्टेन अप्रूवल्स और कंडीशंस यू हैव टू बी फुलफिल्ड विच इज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. आफ्टर दैट यू विल ओनली गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोज both of the concept of the brand के birth and descent. By naturalization is that आपका good character है, you have a good character, you are not an illegal immigrant, you have known the knowledge or the proper specialization in the schedule 8 languages official or the which has the languages mentioned over there. आपको उनके knowledge हो, understanding हो, you can speak
right, and such kind of things. And you have been reside in India, reside on, been in the service of government of India, या आप इंडिया में रह रहे हो या आप सर्विसेज में हो, देयर आर एन एग्रीगेट पीरियड ऑफ 11 ईयर्स का, एंड बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन 12 मंथ्स का पीरियड और कंसीडर किया जाएगा, यानी इन एग्रीगेट 12 ईयर्स आप कह सकते हैं। 11 ईयर्स तो आपको एग्रीगेट आपको कवर करना है, और बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, पहले से एप्लीकेशन देने से पहले पिछले 12 महीने में आप इंडिया में रिसाइड करे हो, देन यू विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन। ओके, नाउ हियर the most important thing which has been currently in news, that is Citizenship Amendment Act 2019, in which this aggregate period of 11 years is been reduced to 5 years कर दिया गया for only 6 communities if we have been coming from 3 countries that is Pakistan, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से। अगर ये 6 communities आ रहे हैं, कौन कौन सी? हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पारसीज। इफ दीज कम्युनिटीज कमिंग इंडिया आ रही हैं, आ चुकी हैं ऑन और बिफोर, उससे पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो इन दैट केस दे गॉट द सिटीजनशिप, मिल जाएगी उन्हें बाय नेचुरलाइजेशन। दे आर नॉट टू बी कंसीडर्ड इलीगल इमिग्रेंट, नहीं कंसीडर किया जाएगा। जो भी उनके एप्लीकेशन प्रोसेसेस वगैरह होंगे, वो सब जो भी इलीगल इमिग्रेशन वाली जो चल रही होंगी उनकी जो प्रोसेस, दे हैव बीन रिसेंडेड एंड दे हैज बीन, द फाइल शुड हैव बीन क्लोज कर दी जाएंगी। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो एक्ट का जो अमेंडमेंट था वो ये था। ओके, बाय एक्विजिशन क्या हुआ? एक्विजिशन इन द सेंस कि इंडिया ने किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, दैट इज फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने गोवा को एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद का गोवा लिबरेशन वॉर हुआ था, तब हमने गोवा को एक्वायर कर लिया था पोर्तुगीज से, क्योंकि पोर्तुगीज आर द वंस दोज हु हैव कम फर्स्ट इन इंडिया एंड गेट आउट ऑफ इंडिया इवन इन द लास्ट, आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद सबसे लास्ट तक में गए थे। तो इन दैट केस में गोवा जब उसे एक्वायर कर लेगा कोई भी टेरिटरी को, तो इन दैट केस में गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी ऑन विच डेट से एंड व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कि व्हाट आर द फॉर्म्स, इन दैट रेस्पेक्ट द सिटीजन्स कंसीडर किए जाएंगे उस एक्वायर्ड टेरिटरी। तो यू शुड बी फोकस ऑन दिस वर्ड स्पेसिफाइड। ओके, स्पेसिफाइड बताया जाएगा, स्पेसिफाइड डेट स्पेसिफाई की जाएगी प्रॉपर नोटिफिकेशन के थ्रू। लास्ट पार्ट, दैट इज रजिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर कर सकती है आपको बाय रजिस्ट्रेशन पर्पज कि आप सिटीजन है इंडिया के, ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन कंडीशन आप फुलफिल कर दें। आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो आप इंडियन ओरिजिन होने के लिए क्या, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट रह चुके हो, जब भी आपने एप्लीकेशन दी हो उससे पिछले 7 साल यू शुड नॉट बी इलीगल मिग्रेटेंट नहीं होना चाहिए। सेम अगर आपकी स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन, दैट है शी और ही ऑल्सो बी फुलफिल द कंडीशन ऑफ दैट he is an ordinary resident in India, whenever they made an application before proceeding that application में आप 7 साल की कंडीशन पूरी कर रहे हो, यानी 7 years you are residing 7 years in India before proceeding any application made in this behalf में। minor child of the parents का minor child जो है, जो सिटीजन है इंडिया के, उसके minor child को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और इंडिपेंडेंट इंडिया जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय के जो सिटीजन्स हैं, इंडिपेंडेंट इंडियन सिटीजन्स के, उसके बाद की जो जनरेशन है वो चलती है, हो सकता है कि भाई दे आर द पीपल लिविंग डिसाइडिंग ओवर देयर आउटसाइड इंडिया, दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट, तो इंडिपेंडेंट, तो उनके लिए सिर्फ जो कंडीशन है यूज़ की गई है वो सिर्फ 12 मंथ्स की यूज़ की गई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड यू नीड टू बी फोकस ऑन दिस, और ओवरसीज कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया क्या होते हैं? ये इंडियन सिटीजन्स नहीं होते हैं, बट दे आर द इंडियन डायस्पोरा का पार्ट होते हैं, जो कि इंडियन पीपल इंडिया के बाहर रह रहे हैं। दे डोंट हैव इंडियन सिटीजनशिप नहीं, लेकिन इनके पास बाहर की सिटीजनशिप, बट है तो इंडियन ओरिजिन की, इनके पेरेंट्स, इनके ग्रैंड पेरेंट्स, इनका बॉर्न हुआ था बट बाहर हुआ, सिटीजनशिप इंडिया की छोटी, मे बी ऑल ऑफ दिस कंडीशन दे आर टू बी द क्रूशल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग इंडियन डिप्लोमेसी और शोइंग द इंडियन सॉफ्ट पावर। दे आर द पार्ट, बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं इन दैट। तो अगर इन OCI होल्डर्स को सिटीजनशिप लेनी है इंडिया के, तो इन दैट केस दे हैव टू बी अ OCI होल्डर, उनके 5 साल तक के लिए, फॉर 5 years तक के लिए OCI होल्डर है। एंड बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन दे हैव टू बी फुलफिल द कंडीशन ऑफ दे हैव बीन रिसाइडिंग इन इंडिया और बीइंग कंसिडर्ड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 12 months। ओके, आई होप यू ऑल गॉट क्लियर बाय द ब्रांड हाउ द Act, Citizenship Act 1955 give the citizenship to the people after the commencement of the constitution, that is by birth, by descent, by registration, by acquisition, by naturalization. There can be also a loss of citizenship as well,
टर्मिनेशन, या तो आप का जो टाइम पीरियड था कि आप उतने ही पर्पस के लिए आपको स्पेसिफाइड पर्पस के लिए दिए थे, इन दैट केस आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया. रिनंसिएशन, या तो आपने खुद से छोड़ दी है सिटीजनशिप, आपने रिनाउंस कर दिया इंडियन सिटीजनशिप बाय एक्वायरिंग द फॉरेन सिटीजनशिप एज वेल इन दैट केस. एंड बाय डिप्राइवेशन, दैट यू हैव एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय द फ्रॉडलेंट बेसिस, बाय providing the wrong documents or fraudulent documents as well. In this cases, all these cases has been fine. Or if you are married to India, in married to India, your marriage has been not been continued for 2 years. In that case, your citizenship has been of India has been deprived. And if you are being given the term, if you are not residing in India for 7 years तक के लिए आप कर नहीं रह पा रहे हैं, तो in that case में आपकी deprived. There are multiple conditions as well, so you are not deep dive into that. Just you need to understand all the 3 bases your citizenship has been: termination, renunciation, and deprivation. Okay, I hope you understand this. So here I explain you the dual citizenship concept, OCI concept. Okay, now let's understand the NRI concept, non-resident of India. Non-resident of India, these people are the citizens of India. They have the citizenship of India. Okay, they are this, but for the purpose of taxation purpose, they have to be classified under the category of non-resident of India. I hope you understand this concept, because non-resident का जो taxation concept है वो आपको पता है. You have reading in income tax act of your. ओके तो बस ये चीज़ आपको यहाँ जो है वो चीज़ ध्यान रखनी कि नॉन रेजिडेंट सिटीजन होते हैं, पर लेकिन इन टैक्सेशन पर्पस के लिए अलग ट्रीटमेंट्स किया जाता है इनके लिए. OCI, दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डुअल सिटीजनशिप, दे आर द इंडियन पीपल हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, दे हैव द फॉरेन सिटीजनशिप. ओके, पर्सन ऑफ इंडियन हो जाए, those people who are residing in India for ordinarily 7 years and more, they are the person of Indian. Okay, now we will discuss about this, because this is been currently in news, just for the purpose of you get the better understanding of what has been going in contemporary times as well on the news. For this purpose, Assam Accord in this. Okay, just give me a second. Okay, section 6A of the Citizenship Amendment Act, Citizenship Act 1955. इन इसमें क्या था कि असम में ऑल असम स्टूडेंट्स एसोसिएशन बन रही थी वहाँ पर. तो बिकॉज बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इंडिया ने, जिसमें बांग्लादेश को पाकिस्तान जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था. वेस्ट पाकिस्तान जो आज आप देखते हैं, एंड ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, पहले ये पूरा एक ही था. इंडिया इसमें is a sandwich between these two Pakistans. But due to this, West Pakistan is exploiting the East Pakistan resources and do not give any kind of political, social, economic rights. Therefore, they have want the country to be liberated and form their own country, Bangladesh. They have come to India that they want their help in this respect. इंडिया हेल्प देम एंड मेक देम एन इंडिपेंडेंट कंट्री. बांग्लादेश बनाया गया था 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का लिबरेशन बोल. तो इन दैट केस में कि वहाँ से क्या हुआ, जब नॉर्थ ईस्ट वहाँ उसके बिल्कुल नियर है, क्लोज बाय है, और पोरस बॉर्डर्स भी थे उस टाइम पे. तो इन दैट केस वहाँ से बहुत सारे बांग्लादेशी असम की तरफ और इन नॉर्थ ईस्ट में क्या इन्फिल्ट्रेशन उनका स्टार्ट हो गया. एट दैट टाइम ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन फॉर्म हुई. वहाँ पे रियॉट्स एंड ऑल दिस अपराइजिंग हैज़ बीन अराइजन दैट फॉर दैट पर्पस. एट दैट टाइम, उस टाइम की जो भी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, एट दैट दे हैव सेट अप अ कट ऑफ डेट कि जो भी पर्सन इस दिन आ चुके हैं दे हैव टू बी कंसिडर्ड सिटीजन. इस दिन के बाद वालों को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, बट और सिटीजनशिप लेने दे हैव टू बी कंसिडर्ड, हैव टू बी फुलफिल सर्टेन प्रोसीजर्स इन दैट रेस्पेक्ट. ये असम अकॉर्ड का था. सेक्शन 6A में इसको स्पेसिफिकली असम को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. दैट्स वाई दीज ऑल थिंग्स आर इन न्यूज़. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. बस इतना बेसिक सा इशू था. अब कोई आर्टिकल आप देखोगे या यू आर गोइंग थ्रू द न्यूज़, यू विल बी गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. ओके, तो द कट ऑफ डेट उसमें स्पेसिफाई कर रखी थी. इन दैट अगर आप उस कट ऑफ डेट के मिड में आ चुके हैं तो इन दैट केस यू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. तो रिसेंट judgments have been made in this regard ki that is been affected the rights of the minorities, article 29 and 30 and so on. So in that case the Supreme Court had made its own judgment and last in October 2024 के अराउंड ये न्यूज़ में भी था. इस वजह से तो I just give a bit, I hope if you are taking this subject you are
going through other articles page as well, so that you get the better understanding of articles, so that you can apply them in your real life as well. Okay, I hope you all understand this. So that's for the today. Best of luck. Do your hard work.